ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨੂ ਜਦੋਂ ਦਾਤਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦਾਤਰੀ ਵਾਂਗ ਵੱਢਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਬੀਟੀ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੰਬੀਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਚੋਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਭੱਠੀਆਂ 'ਚ ਕੜੇ ਅਸੀਂ, ਜੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੜੇ ਅਸੀਂ, ਅੱਗ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨੂਰਾਨੀ ਜੋਤ, ਸੱਚ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜੋਤ, ਪੰਥ ਤੇ ਦਿਆਲ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ, ਝੰਡੇ ਜੀ ਦੇ ਝੂਲ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਭਟਕਦੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਏ ਜਹਾਨ ਤੇ। ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਵੀ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ। ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਿਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਤੇ ਤਿਲ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੱਡਰੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਫਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸੌਖਾ। ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਡੱਡਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਫਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਨਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਲੀਆਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਨਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਏ? ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਏ ਜਿਹੜੀ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਫਲੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਸਲ ਵੈਸੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਲੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਫਸਲ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ ਏ ਜੀ ਪੈੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ, ਮੈਂ ਲੋੜਵੰਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ। ਲੋੜਵੰਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਉਨੀ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਸਲ ਉਹ ਦਾਣੇ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੇ, ਜੇ ਦਾਣੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਖੜੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨੀ ਉਹ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਇਹ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਏ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਜੋ ਪੁਆੜ ਜਿਉ, ਸੁਣੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ, ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 100 ਖਸਮ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਦਾਣੇ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀ ਉਹ ਫਸਲ ਤੇ ਉਹਦੇ 100 ਖਸਮ ਬਣੇ।
कई बार हुंदा की है, बंदा चलाकी करदा है पर चलाकी गुरु नाल नहीं हुंदी, अपने आप नाल हो जाती है। धोखा दूजे नाल नहीं करना, सब तो पहला धोखा धोखेबाज अपने नाल करदा है। प्यार वाले, नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत, छुटे तिल बुआड़ ज्यों सुने अंदर खेत, खेते अंदर छुटिया कहो नानक सौ नाहा, फलियां फुलियां बपुड़े भी तन विच सुआहा। गुरु साहब कहन लगे जे दाने हुंदे तां मुल पैना सी, वकारां नाल जुड़िया होया बंदिया याद रखी, तेरी जिंदगी दे अंदरों इन्ना गुणा ने नहीं अवगुणा ने दिखाई देना है, क्योंकि गुण स्वाह बन जाने ने तेरे। ईरखा एक ऐसी बिरती है ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰੇ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਭੱਠੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਾਲਣ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਈਰਖਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਅਵਗੁਣ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੋ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਂਝ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ गुरु नानक साहब के घरों असीसा लैके, लोरियां लैके, प्रेरणा लैके, दृढ़ता का गुण लैके, सबर का, निमरता का, प्यार का, मिठास का गुण लैके गुरु नानक साहब की असीस थापड़ा लैके अपने पिंड चले गए। प्यार वाले, क्योंकि गुरु नानक साहब पिता ने करतारपुर की धरती तो क्या लेना जी, हुण तुसां ने अपने परिवार च अपने नगर खडूर साहब जाओ, उत्थे जाके गुरमत सिक्खी का प्रचार करो। तो भाई गुरदास जी लिखते ने, दिता छोड़ करतारपुर बैठ खडूरे जोत जगाई। करतारपुर छड़ दिता, खडूर साहब आ गए ते खडूर साहब आके गुरु अंगद देव महाराज जी ने संगत ते पंगत का सिद्धांत आरंभ किया। ते भाई सत्ता दे बलवांडे नूं अपनी वार दी पौड़ी विच लिखदे ने, वो कहंदे भी हसदा वसदा कर दिता खडूर साहब। एक सवाल पैदा हुंदा है कि पहला खडूर साहब वसदा हसदा नहीं सी, पर प्यारिओ वसदा जरूर सी पर खेड़ा नहीं सी खडूर साहब दे लोकां कोल हैगा, क्योंकि खेड़े वाला जीवन, खेड़े पैदा करने वाला शब्द, ओदी अगवाई गुरु नानक साहब कर रहे ने शब्द राही। ते याद रखियो, शब्द का प्रताप खडूर साहब की धरती ते गुरु अंगद साहब महाराज के समय आरंभ होया। गुरु साहब के बारे बाबा सत्ता ते बलवंड जी लिखते हैं, फेर वसाया फेरुआन सतगुर खडूर। कहने लगे फेरूआन दे पुत्र बाबा लहणा जी ने, भाई फेरू मल जे पुत्र बाबा लहणा जी ने आके खडूर साहब नूं वसा दिता। ते किवें वसाया जी, की लैके आए, जप तप संजम नाल तुद होर मुच गरूर। कहंदे जप लैके आए, तप लैके आए। कोई जप इदां दा नहीं जिहड़ा पुठे लटक के कीता जावे, तप वो नहीं गुरमत प्रवान करदी जिहड़ा धूणा ता के कोई बैठा रहे, कोई बर्फ च बैठा रहे, कोई अग बाल के बैठा रहे, वो तप नहीं गुरमत ने प्रवान किया। गुरु नानक साहब के घर तप किहड़ा है जी, भुखे नूं लंगर गर्मी विच तैयार करके छकाउणा, प्यासे नूं जल छकाउणा, राह बना के देना, लोड़वंदां दी मदद करनी, कुदरत दे वास्ते चढ़दी कला वास्ते रुख लाउणे, पानी बचाउणा। याद रखियो, ये गुरु नानक दे घरों सानूं जप तप मिलिया। जप तप संजम नाल तुद होर मुच गरूर, लभ वणा है मानसा ज्यों पानी बूर, वरे दरगह गुरु की कुदरती नूर। गुरु अंगद देव महाराज कुदरती नूर ने। प्यार वाले, तीन चौधरियां का जिक्र मिलता है गुरु अंगद देव महाराज के जीवन में। एक चौधरी बख्तावर, एक चौधरी तख्तमल, तीसरा चौधरी है वह नाम है चौधरी मलूका। हुण खडूर साहब की धरती से एक होर भी पखंडी रहिंदा है जी, वह नाम है शिवनाथ तपा। वह डेरा है, वो लोगों के बच्चों को नशे ते लाउंदा है। ताई वो विद्वान ने कहा ना भी अड्डे बन गए ने बदमाशी दे, शह इत्थे इन्नी डेरियां नूं हुण लगदा है नत्थ पाउणी पऊ छेती शहजादियां तेरियां।
अज पंजाब की धरती से जिहड़ा डेराबाद है मुआफ करना, वो बदमाशी के अड्डे बने हुए हैं। खैर, गुरु अंगद देव महाराज जी के समय खडूर साहब की धरती पर एक पखंडी रहिंदा है, शिवनाथ तपा जोगी, उहदा डेरा है। लोगों को नशा वंडदा है, उत्थों पखंड करता है, लोगों का शोषण करता है, आर्थिक कई तरह का नुकसान करता है, पर धर्म के बाणे च बैठा है। जदों उन्होंने पता लगा, उहदे सामने जदों गुरु अंगद साहब ने बाणी बाणे का संगत पंगत का डट के गुरमत का प्रचार आरंभ होया इस इलाके में, उन्होंने तकलीफ होंदी है। उहदा एक चेला चौधरी मलूका, उहदा परिवार गुरु साहब की हजूरी च आया, कहन लगे महाराज साडा इलाके का मालक है, साडा परिवार का मुखी है चौधरी मलूका, नशा करता है बड़ा, इनू मिर्गी पैंदी है। गुरु अंगद साहब महाराज ने वचन किया, कहन लगे नशा छड्ड दे, शराब पीनी छड्ड दवे, इनू बीमारी नहीं पवेगी, इहदी मौत नहीं होवेगी। गुरु सवारियो, चौधरी मलूके दे परिवार की बेनती को प्रवान करके महाराज ने वचन किया। चौधरी मलूके ने नशा छड्ड दिता, शराब पीनी छड्ड दिती है, तंदुरुस्त हो गया, शराब नहीं पींदा, बीमारी का दौरा नहीं पैंदा, बच गया। एक दिन की होया, पखंडी शिवनाथ तपे जिहदे नाल इहदी यारी सी, सांझ सी, जिहदे डेरे ते नशा करन दी आदत पई सी, भंग पीनी शराब पीनी, वो शिवनाथ तपा मिलिया चौधरी मलूके नूं, कहन लगा बस इन्ने दिनां दी यारी सी, 4 दिन गुरु के दरबार च गयो, कड़ा प्रसादी देग छकी 4 दिन, ते मेरी यारी भुल गई, मेरी सांझ का चेता भुल गया, मेरे को आउणों हट गयो। इस तरह दीयां गल्लां उन्हें कुछ चज्जियां जिहियां करके चौधरी मलूके दे अंदर पुराणियां बिरतियां कुछ संगत उहदी ने फिर पैदा कर दित्तियां। उहदे नाल गया, उहदे डेरे तो शराब पीती है, फिर अपने घर की छत ते चढ़ के आके उच्ची उच्ची रौला पा के कहन लग पिया, कहंदा भी गुरु अंगद साहब खडूर साहब, कहंदा गुरु अंगद साहब कहंदे सी भी चौधरी मलूकिया जिदन शराब पीवेंगा तेरी मौत हो जानी है, अज मैं शराब पीती है, वेखांगा मेरी मौत हुंदी है कि नहीं। हुण प्यार वाले, वो कोठे की छत ते इदां बोली जा रहा है अबे तबे, क्योंकि झूठा मद मूल ना पीछे ही जेका पार वसाए, जित पीते मत दूर होए, बरल पवे विच आए, बरल पै जांदा है। नशेड़ी बंदा अवल तबलियां इन्नियां मारदा है। खैर, कोठे ते चढ़ के उच्ची उच्ची इदां कह रहा है, इन्नी देर नूं मिर्गी दा दौरा पिया, जमीन ते थल्ले डिग्गा, डिगदियां सार इहदी मौत हो जाती है। ते गुरु अंगद साहब महाराज जी के चरणों च पहुँच के इलाके की नगर की संगत कहती है, धन गुरु नानक साहब महाराज, धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह, तुसीं वचन कीता सी, वाकई जिन्ना चिर चौधरी मलूके ने नशा नहीं पीता उन्ना चिर उहदी जिंदगी तंदुरुस्ती वाली रही है। शराब पी ली है तो महाराज उहदी मौत हो गई है, क्योंकि गुरु सदीवी सच्चे वचन अटल करता है। प्यार वाले, हुण शिवनाथ तपे ने ईरखा दे विच आके लोकां नूं चुक के मगर ला के गुरु अंगद देव महाराज जी का विरोध कराया। गुरु अंगद देव महाराज रब्बी रजा दे विच भाणे विच तुर पए, उथों पिंडां विच प्रचार करन वास्ते गुरु साहब जथे दे रूप में चल पए, क्योंकि शिवनाथ तपे ने यह जिद की, कहन लगा जां सिखां दे गुरु नूं कहो वो मींह पवा देवे, जां फिर मैं मींह पवा देवांगा। यही गल कह के मैं फतेह बुलावांगा। समा हो गया जी, 2 मिनट रह गए ने मेरे। हुण उन्हें झूठे बोलिया, कहंदा जां सिखां दे गुरु नूं कहो मींह पवावे, जां फिर मैं पवा देवांगा। सिखां ने जिहड़े कुछ डावाडोल बिरती वाले सी, पक्के सिख नहीं जिहड़े कच्चे पिल्ले सी, उन्होंने आके कहा महाराज मींह पवा दिओ, नहीं तो शिवनाथ तपा कहंदा मैं मींह पवा देवांगा। गुरु साहब रब दे भाणे च ने, परमात्मा की रजा विच ने, कहन लगे ठीक है भाई, जे वो पवा सकदा है तां पवा देवे मींह। उन्हें अगली शर्त यह रखी है भी गुरु अंगद साहब जे पिंडों बाहर जाणगे तां मैं मींह पवा देवांगा। महाराज नूं जदों लोकां ने आके कहा, गुरदेव कहन लगे असीं चले जाने। सच्चे पातशाह इलाके दे पिंडां सिੱਖੀ प्रचार लई तुर पए ने, तां साध संगत शिवनाथ तपे ने धूणा ताया, बड़े पखंड कीते, बहुत उन्हें यतन किए, पर मींह कित्थों पवे। उधरों औड़ लगी है, भादरों का महीना, गर्मी तपश पै रही है, मींह पिया नूं कई दिन तां महीने हो गए ने,
लोग अक्के पे ने। शिवनाथ तपे नूं रोज़ जाके कहते ने, पर उहदी कोई पेश नहीं जा रही कादर दे अगे। हार के लोगों ने पता लग गया भी झूठ बोलता है पखंडी। उन्होंने ये डेरे नूं घेरा पा लिया, खडूर साहब के लोगों ने ये डेरे नूं घेरा पा लिया भी किते रात के हनेरे विच पखंडी दौड़ ना जाए। साध संगत होया कि फिर अंदर लोके बैठ गया। जदों दिन जिहड़ा उन्हें तय किया सी भी इस दिन मीह पवावांगा मैं, वो दिन लंघ गया, लारे भी लंघ गए। लोगों ने धू के बाहर कढ लिया, क्योंकि गुरु अमरदास महाराज इन्हां दिनां च खडूर साहब आए तो गुरु अमरदास महाराज ने लोगों के अगे सच सामने ले आंदा। लोग गुस्से विच आके शिवनाथ तपे नूं धू धू के खडूर साहब दियां पिंडां दे विच उहदा अंत हो गया, क्योंकि झूठ बोलण वाले दा यही हाल हुंदा है। दोबारा जाके गुरु अंगद देव महाराज के चरणों विच हाथ जोड़ के माफ़ी मंगी है, महाराज मीह पैना तो कुदरत के वस है, पर झूठे पखंडी ने साडे तो जान बुझ के तुहाडा विरोध कराया सी प्यार वाले। हुण इह साखी का दूजा रूप भी मिलता है। यह भी कहा जाता है भी गुरु अंगद देव महाराज जदों चले गए, बाबा अमरदास आए, उन्होंने कहा पखंडी ने कहो मीह पवावे, नहीं तो जेड़े पैड़ी च इहदा शरीर जाएगा उत्थे मीह पै जाएगा। खैर इहदे च मिलावट है, ये गल च मिलावट है, क्योंकि गुरु साहब इदां दी शख्सियत नहीं है। गुरु साहब इदां दी महानता रखने वाले नहीं है प्यार वाले। दोबारा माफ़ी मांग के खडूर साहब दे लोगों ने गुरु अंगद साहब महाराज नूं अपने नगर वापस लिया है, क्योंकि सच्चे पातशाह महाराज जी के घरों माता खीमी जी बड़ा वड्डा लंगर चलाउंदे ने। अज भी अपने बच्चों नूं लैके जाया करिए जी इन्हां स्थानां ते। खडूर साहब माता खीमी जी के नां ते 22-25 पिंडां दे विचों घिओ वाली खीर बन के वारी नाल अज भी आउंदी है। एक औरत का जिक्र है गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विचों, माता खीमी जी का नाम। माता खीमी 100 सोए जिन गोए उठाली, लंगर दौलत वंडी है, रस अमृत खीर क्याली। माता खीमी ने डट के सिੱਖੀ का प्रचार किया है, लोड़वंदां की मदद की है, लंगर दे विच सत्कार वधाया है, हत्थीं सेवा की है। गुरु अंगद देव महाराज ते माता खीमी जी ने अपने समय विच गुरु के गुण गाउंदियां, गुरु की वडियाई करदियां गुरमत सिੱਖੀ का प्रचार इस रूप दे विच कीता है जी। मैं तो हाथ जोड़ के प्यारिओ अर्ज करांगा, इन्हां इतिहासक स्थानां ते अपने